नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। वेलकम टू स्वास्थ्य में जयते। जैसा कि हम जानते हैं, हर सैटरडे संडे स्वास्थ्य में जयते में हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ते हैं और बहुत सारे अवेयरनेस वाली बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। और 31 मई इज वर्ल्ड नो टोबैको डे। सो इस वर्ल्ड नो टोबैको डे में हम लोग के लिए स्पेशल मार्गदर्शन करने के लिए वी आर having with us Dr. Preetam Kalaskar. Namaste, Doctor. Welcome to Akanksha Desire for Wellness. So today we are going to discuss all about tobacco, its side effects, and what everything Dr. Preetam will be telling us. And before we start with this session, I would like to introduce Dr. Preetam Kalaskar, who is the Director and Consultant Cancer Specialist at Mumbai Oncocare Center. And Dr. Preetam has an experience of over 8 years, and he is also an honorary consultant at Jupiter Hospital and Kaushalya Hospital, Thane. So welcome again, Doctor. And as we know Thank you. as we know that World No Tobacco Day is celebrated every year. So which informs, kind of public celebration, which informs the dangers on using tobacco, and World Health Organization is doing, to fight against this. So when, I have a couple of questions for you, which I'm sure the audience who have joined now and who will be viewing this later, it will be very beneficial for them. So, just wanted to know as in a layman's language, what is the extent of damage that tobacco is making on human health, especially in India? So, when we talk about tobacco Yes. is I would say consumed in two forms presently. One is a smoked tobacco, one is a non-smoked tobacco. May it be in any form, there are multiple effects that tobacco causes. All what we know is cancer is one of them, but weight loss, decreased appetite, right? Take poor oral hygiene, all this leading to gum complications, right? Indirectly, other cardiac related side effects, heart related side effects, these are also somewhat related to tobacco. And then when you link cancer to it, then it becomes a big elephant. So आप कोई भी कैंसर लीजिए, you name it any cancer, most of them in some way are related to tobacco. हम लोग जब टबैको के बारे में सोचते हैं तो व्हाट वी थिंक इज ओनली ओरल कैंसर इज Yes, रिलेटेड yes, टू yes. कैंसर, राइट? अगर मुंह का नहीं हो रहा है तो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि टबैको तो हम लोग मुंह से खा रहे हैं। बट राइट Yes. फ्रॉम द पॉइंट हम लोग जहाँ से खाते हैं, ओरल कैंसर, टंग कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, कोलॉन कैंसर, somewhat ovarian cancer, breast cancer, many cancers are related to this cancer, this tobacco inhalation and tobacco ingestion. ओके। सो डॉक्टर, एक बात सुनने को मिलता है कि टोबैको से जो कैंसर्स होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ऐसा मानना जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है। सो इज इट ट्रू? देखिए, इसमें ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, दैट इज नॉट राइट थिंग, राइट आंसर। आई वुड से कि अगर इसको हम लोग जल्दी पकड़ सकते हैं तो टाइमली अगर उसको डायग्नोज कर लेंगे तो पेशेंट क्योर भी हो सकता है। बट यूजुअली ये टबैको रिलेटेड कैंसर से ना थोड़े यंग एज में होते हैं। व्हेन यू सी इफ दे आर इन यंग एज, देन द कैंसर्स आर वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। तो उनको ना ट्रीटमेंट के टाइम रिस्पॉन्सेज जो नॉर्मल कैंसर्स का होता है वैसा नहीं मिलता है। अगर मैं किसी कैंसर को विदाउट टबैको रिलेटेड ट्रीट कर रहा हूँ तो समवट जो नॉर्मल कैंसर है वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है। बट कभी कभी ये टबैको रिलेटेड कैंसर्स ना दे थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं और पुअर रिस्पॉन्स देते हैं, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। हाँ, पर अगर आप अवेयर हो, आप सतर्क हो और मुंह में कुछ भी छाला आता है, आप जाके डॉक्टर को जल्दी दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली उसका इलाज हो सकता है। Okay, okay. So what is the average life expectancy of tobacco-induced cancer patients? मतलब कितना हम expect कर सकते हैं उसकी life? See, usually life expectancy of tobacco related cancer would be different for all cancers. Like अगर आप माउथ कैंसर लोगे तो माउथ कैंसर में भी उसके स्टेज के हिसाब से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, हर स्टेज का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम
अलग अलग है। फिर आप स्टमक लोगे तो स्टमक का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आप माउथ कैंसर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हर ओके, जगह का कैंसर अपनी बायोलॉजी के हिसाब से बिहेव करता है। बट सबसे ओके। खराब जो है इन सब में, अगर आप सबसे डेंजरस कहोगे या सबसे बैड कैंसर मुझे पूछोगे सबसे खराब कौन सा आप बोलोगे, तो जो ओरल कैविटी का कैंसर है वो सबसे हाँ, खराब होता है। क्योंकि अगर वो एडवांस स्टेज में आता है तो हम लोग उसको बहुत कोशिश करते हैं क्योर करने के लिए, बट बहुत एग्रेसिव होता है कंपेयर टू नीचे इसोफेगस है, स्टमक है। ओरल कैंसर्स आर वेरी बैड एंड मोस्ट ऑफ देम सारे के सारे ऑलमोस्ट टबैको रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप मुझसे एवरेज एक्सपेक्ट करोगे कि फोर्थ स्टेज का वो टबैको रिलेटेड ओरल कैंसर है, तो मीडियन सर्वाइवल हम लोग 2 इयर्स एक्सपेक्ट करते हैं। okay, okay. So, like, what is your opinion on the economic aspects of tobacco? अगर हम इस एस्पेक्ट की बात करते हैं तो आपका इसमें क्या टेक है? So economic aspect in terms of the people who are working in tobacco industry, they might get affected because of हाँ, हाँ. less consumption. That is what you're asking. Yes. Mhm. So see, one is economic aspect because of many people are involved in the production, but I would suggest that is not the only employment available in India. We can Yes. definitely find other ways for giving them employment. Yes, it is a huge industry, but जो तंबाकू खाने से लोग जा रहे हैं उनकी फैमिलीज भी उनके हेड ऑफ द फैमिलीज भी जा रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर एम्प्लॉयमेंट्स, राइट? सो एट वन प्लेस वी वांट टू प्रोटेक्ट those who are engaged in this industry, which is huge, but simultaneously by producing tobacco and its consumption, we are losing very young people, Hmm. right? So protecting these young people is very important because most of them are head of the families, they run the families. So Hmm. just एक छोटी सी आदत के कारण एक पूरी फैमिली का Hmm. लाइफ खराब हो सकता है, विच इज जस्ट अ Hmm. माइनर हैबिट, नथिंग एल्स। या कोई Yes. सुबह से ब्रश करने के लिए टबाको यूज करता है, जिनको लगता है ये तो बहुत ही मामूली चीज है, बट वो हाँ. छोटी सी आदत पूरी लाइफ खत्म कर सकती है। सो एम्प्लॉयमेंट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतना सारा जॉब अवेलेबिलिटी हो सकता है, अगर इसमें प्रॉपरली ध्यान दिया जाए तो वी कैन हैव देयर resettlement into some other industry, and this thing has to stop. Okay. People, Okay. once you completely ban it, a lot of lives will be saved and lot of Yes. families will be saved. Rather than lives, a complete family goes to the lower side of income if the head of the family is lost. Yeah. Yeah. Okay. So, is there any specific form of tobacco that is more dangerous? See, any form of tobacco is dangerous. Any अच्छा. form of tobacco is dangerous. Uh, Okay. but you say inhale from smoked tobaccos. When you smoke tobacco, then carcinogens they directly enter into the lung. So that I would rate it more dangerous because Okay. the chewed tobacco many times what happens na they spit out the remainder, right? Yes. Yes. But when they smoke it, na there are almost 70 chemicals which are inhaled, जो हम लोग सांस लेके लंग्स तक लेके जाते हैं। ये 70 जो केमिकल्स है ये सारे कैंसर करते हैं, और एक बार वो अंदर जाने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। दे उनको वहीं Yes. सेटल होना है पूरी लाइफ आप जब तक हो। और उसमें से एक केमिकल ने भी अगर कैंसर करने का ठान लिया तो वो कभी भी कर सकता है। लाइफ एक बार वो अंदर जाने के बाद उसको बाहर आने का रास्ता नहीं है। So with every Yeah. puff of smoke, there are so many Mhm. chemicals जो chest के अंदर जा रहे हैं। So that I would rate it the most dangerous, but I would say all of them are danger. Okay. Not only Okay. tobacco, जो नॉर्मल सुपारी होता है, सुपारी Hmm. से भी कैंसर होता है। तो बहुत लोगों का समझ Okay. रहता है कि यार इसमें तंबाकू नहीं, बिना तंबाकू का पान खा लेता हूँ मैं Hmm. सुपारी डाल हाँ. के, और उसको यहाँ पे रख देते हैं, राइट? हाँ. हाँ. तो उससे Yeah. भी होता है। जो हम लोग पान के ऊपर कत्था लगाते हैं जो हाँ. सुपारी से हाँ. बनता है, उससे भी हो सकता है। सो Okay. जब हम लोग कभी पान बनाने बोलते हैं तब बिना तंबाकू का बनाओ और उसमें सुपारी डालो ऐसा बोलते हैं, तो सुपारी भी कॉज कर सकता है, ये जानना जरूरी है। सिर्फ तंबाकू के पीछे नहीं, सुपारी से भी होता है। तो Okay. नॉर्मल बिना तंबाकू का सुपारी का कोई पैकेट आता है, वो
यंग लोग लेके खाते हैं कि इसमें तंबाकू नहीं है, बट हाँ, उससे भी कैंसर हो सकता है। ओके, ओके। सो लेकिन डॉक्टर अभी जो ट्रिगर्स की अगर बात करते हैं, जो ऑलरेडी एडिक्टेड है कोई भी टोबैको या तो स्मोक या टोबैको च्यूइंग में, अब उसको बार-बार अर्ज होने लगेगा उस टोबैको का। सो वो ट्रिगर को वो कैसे कंट्रोल करे या कैसे मुक्ति पाए उससे? यस, देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये डिपेंडेंसी क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये ट्रिगर या अर्ज जो बोलते हैं वो क्यों होता है वो जानना ज़रूरी है। इसके अंदर निकोटीन करके जो प्रोडक्ट होता है, हुँ, वो निकोटीन के कारण ये सब तकलीफ है। निकोटीन के हुँ, कारण ब्रेन निकोटीन पे डिपेंड हो जाता है। जब भी कोई स्मोक करता है या तंबाकू खाता है, निकोटीन से ब्रेन में डोपामाइन जनरेट होता है। ये डोपामाइन से फील गुड का फीलिंग आता है, हल्कानेस हुँ, होता है, हल्कानेस फील होता है, सो लाइटेडनेस आ जाएगा। तो ये निकोटीन का अगर आप रिप्लेसमेंट दे दो किसी को बिना हाँ, हाँ, तंबाकू के, तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? निकोटीन च्युइंग गम आते हैं मार्केट में, जो काफ़ी अच्छा, सस्ते हैं। किसी को स्मोकिंग का आदत है, किसी को तंबाकू खाने का आदत है, तो वो निकोटीन के च्युइंग गम है, 4 मिलीग्राम से अवेलेबल रहते हैं, 2 मिलीग्राम के भी होते हैं। वो सिर्फ़ उनको गम के अंदर रखना है और नॉर्मल बबल गम जैसा है, ओके, उससे उनको जो अर्ज है वो सैटिस्फाई हो जाएगा। और ग्रेजुअली जैसे अगर उनको दिन में 10 सिगरेट लग रहे हैं या दिन में 10 बार वो पैकेट खा रहे हैं गुटखा का, तो 6-7 बार अगर उन्होंने बबल गम खाया, निकोटीन गम खाया, तो 1 वीक में 7 बार लगेगा बबल गम, 8 बार लगेगा, नेक्स्ट वीक में 6 बार लगेगा, उसके अगले वीक में 5 बार लगेगा। ग्रेजुअली उनका जो अर्ज है वो कम होते जाएगा और डिपेंडेंसी ऑन तंबाकू कम हो सकता है। पर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये 1 दिन में नहीं हो सकता। हाँ, यस, इसको एटलीस्ट 3 से 4 महीना आपको समय देना है। और अगर आपने मन से मान लिया कि मुझे छोड़ना है, तो आप इससे 100% इससे मुक्ति पा सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब हमारे पास कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो जब हुँ, हुँ, ओरल कैंसर के पेशेंट आते हैं और हम लोग उनको पूछते हैं कि आप तंबाकू खाते हैं क्या? तो उनका पहला आंसर रहता है कि खाता था सर, अभी छोड़ दिया। एंड जिस दिन से उनको डायग्नोसिस पता चलता है, उनको कितना भी अर्ज हो, फिर उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते। इसका हुँ, मतलब हुँ, क्या होता है कि ये जो अर्ज है उसको ह्यूमन्स कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकते हैं, है ना? हुँ, जब डायग्नोसिस पता चलता है तो बिना निकोटीन के कैसे कंट्रोल हो जाता है? यस, हाँ, तो हाँ, तब वो मन में ठान लेते हैं ना, अभी इस चीज़ को मैं हाथ नहीं लगूँगा, अभी हुँ, मुझे कैंसर हुँ, से बाहर आना है। तो हम हाँ, लोग कैंसर होने की राह ना देखें, कैंसर होने की राह ना देखें, उसके बजाय हम लोग इसको निकोटीन यूज़ करें और इससे बाहर निकलें। यस, यस, हाँ। जो आप जो बबल गम बोल रहे हैं, सो क्या ये भी उसमें भी निकोटीन है या जस्ट फीलिंग दे रहा है निकोटीन वाला? या उससे एडिक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे? नहीं, इसमें निकोटीन ही होता है और अच्छा, इसमें भी थोड़ा-सा इसमें टोबैको जैसा एडिक्शन नहीं होगा, पर थोड़ा ओके, डिपेंडेंसी हो सकता है, बट दैट इज़ बेटर देन टोबैको, क्योंकि ओके, इसमें और कोई कार्सिनोजन नहीं है। इसमें सिर्फ़ ओके, प्योर निकोटीन है, जिसका हम लोग ओके, धीरे-धीरे, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको अगर 8 बबल गम्स का ज़रूरत पड़ रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीक 7 कर दीजिए, फिर 6 कर दीजिए, फिर 5 कर दीजिए, धीरे-धीरे इसको कम कीजिए। 6 महीना लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, है ना? तो ओके, आपका जो बॉडी है धीरे-धीरे निकोटीन के रिक्वायरमेंट को सेटल हो जाएगा। अभी स्मोकिंग करने से अगर किसी को 10 मिलीग्राम निकोटीन लग रहा है, मैं जैसे फिगर दे रहा हूँ, अगर उसको मैं वही 10 मिलीग्राम बबल गम से दूँ, तो वो सिगरेट नहीं पिएगा। और अगले हफ्ते से उसको 9 मिलीग्राम कर दूँ, तो बॉडी को डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ना 10 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम में इतना डिफरेंस नहीं है। अगली बार और थोड़ा कम कर दूँ, अगली बार और थोड़ा कम कर दूँ, इससे हम लोग उनको डी एडिक्ट कर देते हैं। ओके, सो इसमें विल का होना बहुत ज़रूरी है, उनका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। लोगों को सिर्फ़ बुरा बोल के ये एडिक्शन नहीं होगा, फैमिली सपोर्ट भी उतना ज़रूरी है ना? किसी को क्रिटिसाइज़ करके छुड़ाना इम्पॉसिबल है, बट यस, उनको सपोर्ट करके छुड़ाना ज़्यादा ईज़ी है। बिज़ी या ओके। सो डॉक्टर जब ई-सिगरेट्स की बात करते हैं, सो आई डोंट नो हाउ आई मीन इन इंडिया वेदर इट्स देयर और नॉट बट मैंने फ्रांस में देखा है बहुत कॉमन था। तो ई-सिगरेट क्या लाइक इफ अ पर्सन कैन अफोर्ड या उसको मिलता है और वो अगर उस पे स्विच करता है, तो इट इज़ गोइंग टू हैव द सेम इम्पैक्ट या फिर बेटर है इस बबल गम की तरह? देखिए ई-सिगरेट ना उसका जो डेटा है अभी तक
वो इतना क्लियर नहीं है। सो अभी फ़िलहाल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में या यंग अडल्ट्स में रिकमेंडेड नहीं है। सो प्रेजेंटली तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका फंडामेंटल्स निकोटिन गम जैसा ही है, सेम एज निकोटिन गम, बट उसका सेफ्टी अभी तक प्रूवन नहीं है। सो प्रेजेंटली तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। प्रेजेंटली मैं निकोटिन गम्स ही रिकमेंड करूँगा। Okay, okay. So when we talk about the screening tests, so what do you recommend for early cancer detection? ऐसा कोई है screening test जिसमें हम पहले बहुत जल्दी पता चल जाए और immediately ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि 90% उसको बचाने की कोशिश में लगे पेशेंट को. So what can a person go for that screening test? So, see, in cancer, presently the recommended test जो हम लोग स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो ज़्यादा ससेप्टिबल है या जिनको ज़्यादा होने का चांस है, उनमें कुछ टेस्ट ऐसा कर सकते हैं जिससे अगर वो बीमारी आया है तो वो जल्दी पकड़ा जाए, उसको हम लोग स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्रेजेंटली Okay. स्क्रीनिंग 2 कैंसर्स में रिकमेंडेड है, एक है ब्रेस्ट कैंसर और एक है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर, आज सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल्स में फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे है इंडिया में, राइट? तो इन दोनों में क्या रिकमेंडेशन है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए राइट फ्रॉम द एज ऑफ 21 एवरी 3 इयर्स एक पैप स्मीयर रिकमेंडेशन है। और अगर वहाँ पे एचपीवी वायरस का एग्जामिनेशन भी हो रहा है तो एवरी 5 इयर्स भी कर सकते हैं अप टिल 65 इयर्स। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए 45 ऑनवर्ड्स, ऑल फीमेल्स फ्रॉम 45 एज ऑनवर्ड्स दे शुड अंडरगो अ एनुअल मैमोग्राफी। एक एनुअल मैमोग्राफी करके टेस्ट होता है, मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। वो एक्सरे हमको हर साल करना होता है अप टू 60 और 65 इयर्स। ये जनरल पॉपुलेशन के लिए स्क्रीनिंग है। अभी एक होता है हाई रिस्क पॉपुलेशन, ये जनरल पॉपुलेशन हो गया। तो 2 ही टेस्ट रिकमेंडेड है फॉर जनरल पॉपुलेशन, बट एक होता है हाई रिस्क पॉपुलेशन। जैसे अगर कोई है कि बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहा है तो उसने क्या करना चाहिए, अगर उसके मुंह में एक भी अल्सर आ जाए, पहली बात तो तंबाकू छोड़ना चाहिए, और एक भी अल्सर आ जाए तो जाके ओरल ईएनटी डॉक्टर या डेंटल डॉक्टर उनको जाके दिखाना ज़्यादा जरूरी है। तो ये उनके लिए एक स्पेसिफिक स्क्रीनिंग हो गया। हम लोग सबके लिए नहीं कर सकते, पर अगर कोई स्मोकर है बहुत, जैसे दिन में 10-15 सिगरेट पी रहे, उनको अगर कंटिन्यूसली खांसी आ रहा है तो उनको चेस्ट फिजिशियन को जाके दिखाना चाहिए। वो उनको सीटी स्कैन करने बोलेंगे चेस्ट का, अगर उनको ऐसा कुछ होने वाला है तो जल्दी पता चलेगा। तो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन हो गए, जो तंबाकू च्यूअर्स है, स्मोकर्स है, उनको ये सब करना पड़ेगा। दूसरा एक स्क्रीनिंग क्या होता है ना, कि जिसके फैमिली में कैंसर हो रहा है, जैसे मासी को था, मम्मी को है, या कजन सिस्टर को भी है, ये दूसरा हाई रिस्क पॉपुलेशन होता है, जिसके फैमिली में कैंसर हो रहे। तो ऐसा कोई है जिसके फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को कैंसर हुआ है, तो उनको जाके जेनेटिक काउंसलर को मिलना पड़ेगा या ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, जो उनको गाइड करेंगे जेनेटिक काउंसलर के पास। फिर वो जेनेटिक काउंसलर उनको स्टडी कर सकते हैं उनके फैमिली को, कि आपके फैमिली में इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं। कोई ऐसा जीन तो नहीं है जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को जा रहा है। उससे क्या होगा कि अगर कोई 35 साल का है या कोई 20 साल का है, उसको अगर पता चलता है कि मेरे फैमिली में ये जीन है और ये उसके ब्लड में भी है, तो वो पर्टिकुलर उस एज में वो कैंसर जब होने वाला उसके पहले उसको डिटेक्ट कर सकता है और अपने आप को उससे बचा सकते हैं। लाइक एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्टर है, उसका मैं एग्जांपल दूंगा। उनकी मासी को कैंसर था, फिर उनकी मदर को कैंसर था, फिर उन्होंने अपना टेस्ट किया तो पता चला ब्राका म्यूटेशन करके एक टेस्ट था जो उनके ब्लड में पॉजिटिव आया था। और फिर उन्होंने अपना जो सर्जरीज कर लिया ब्रेस्ट और ओवरी का, जिससे आज उनको कोई कैंसर नहीं है। हुआ है, उन्होंने ये बात 2013 में सबको बताई, से ये अवेयरनेस हुआ है और ये इसका फायदा लोगों को देना चाहिए। किसी के भी फैमिली में एक से ज्यादा लोग अगर कैंसर के हैं तो उनको जेनेटिक काउंसलर को मिलना चाहिए, और अपनी फैमिली के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट जरूरी है, कौन से कैंसर्स के लिए, वो जेनेटिक काउंसलर से जानना चाहिए।
ओके, ओके। सो जैसा कि आपने कहा कि जो बबल गम है, सो निकोटीन जो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक दिन में धीरे-धीरे उसको कम करके लोग ठीक मतलब अपने आप को दूर इस हैबिट से मुक्त कर सकते हैं। सो ऐसी कोई और दवाई भी है क्या लाइक इज़ देयर एनी मेडिसिन व्हिच कैन हेल्प टू क्विट टोबैको ऐसा भी है क्या कोई मेडिसिन? या यस यस, इसमें ना कुछ डी एडिक्शन के लिए मेडिसिन आते हैं, जैसे ओरल टैबलेट्स भी होते हैं। बट एक्चुअली ओके, ये जो डी एडिक्शन के टैबलेट्स है ना, ये प्रॉपरली जो साइकेट्री प्रैक्टिस करते हैं, है ना, दे आर ओके, ट्रेन्ड इन गिविंग दिस। तो दे आर ट्रेन्ड अच्छा। इन प्रिस्क्राइबिंग दोस डोसेस, जिनको अगर गम से सफिशिएंट रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर हुँ, वो टैबलेट्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे थोड़ा ओके। सा जो निकोटीन का डिपेंडेंसी है वो कम होता है। हुँ, So हुँ, that is an additional pharmacological therapy which is अच्छा। given to de-addict somebody. उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो उनको पेशेंट्स को अदर देन ये गम उसके ऊपर हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, गम लेने के बाद नहीं होता है, छूटता है, फिर छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत हाँ, सारा हाँ, ऐसा हाँ। पॉपुलेशन है कि अरे मैंने ट्राई किया था 3 महीना कुछ नहीं होता है, फिर से सिगरेट पीना ही पड़ रहा है। बट देन उनको समझना चाहिए कि हाँ, उनको ये बताना चाहिए हम लोगों को कि उससे नहीं हुआ तो उसका एक सेकंड लेवल है, जिसमें आपके यहाँ पे कोई काउंसलर होंगे। मोस्टली जो लोग साइकेट्री प्रैक्टिस करते, दे आर ट्रेन्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिंग दिस ड्रग्स। तो आप उनका हेल्प लीजिए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। ओके, ओके। सो जब हम मेथड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं फ्रॉम टोबैको हैबिट्स, तो वो कौन से जैसे काफ़ी देखा गया कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, अल्कोहल की जब बात करते हैं, सो टोबैको के लिए भी ऐसा कुछ है क्या वेयर द पर्सन कैन गो टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर और व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन? Yes, yes. So basically there are no specific centers or very few I would say. मतलब बहुत ज़्यादा तो सेंटर्स नहीं है, पर इंडिविजुअल डॉक्टर्स डू प्रैक्टिस। सो देर आर फार्माकोलॉजिकल मेथड्स एंड देर आर नॉन फार्माकोलॉजिकल, लाइक बिहेवियर थेरेपी। सो हुँ, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में मैंने जैसे आपको बताया, निकोटिन गम एक आता है, और उसके बाद कुछ हुँ, टैबलेट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडेंसी टू निकोटिन। एंड देन एक हुँ, बिहेवियर थेरेपी होता है, जिससे पेशेंट से बात किया जाता है ना। अच्छा। दैट ऑल्सो हुँ, हेल्प। हुँ, सो ये कंप्लीट थेरेपी होता है, ये बस एक गम देने से बहुत बार नहीं काम होता है। तो बिहेवियरल ओके। थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के साथ बैठ के बात करना कि आपको ये एग्जैक्टली कब होता है, कौन से टाइम पे होता है ना। किसी को स्पेसिफिकली 3 बजे ही होता है, या किसी को हुँ, स्पेसिफिकली किसी ग्रुप के साथ ही वो अर्ज होता है, या कोई स्पेसिफिक हुँ, जगह पे ही वो ऐसा होता है, तो उस ट्रिगर एरियाज को अवॉइड कैसे करना चाहिए, या चाय हाँ, पीने के टाइम ही हो रहा है, तो ये सब बिहेवियरल थेरेपी में ट्रेन किया जाता है। और कलेक्टिव ओके। एफर्ट्स के बाद बहुत लोग इसमें से बाहर निकलते हैं। ऑलमोस्ट जो लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एंड दोज हु आर डिटरमाइंड, सारे लोग इसमें से बाहर आ जाते हैं। ओके, ओके। सो अभी डॉक्टर प्रीतम लाइक आपका इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, सो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि इट्स लाइक आपने जैसे कहा कि वो पर्सन तो सफ़र कर रहा है बट द फैमिली मेंबर्स आर आल्सो सफरिंग एंड टू सम एक्सटेंट फैमिली मेंबर्स की आदत भी हो जाती है क्रिटिसाइज़ करने की बिकॉज़ हम लोग ये कोशिश नहीं करते कि उसको आदत से बाहर निकालें, रादर बार-बार ये प्रूव करते कि आप गलत हो बिकॉज़ यू आर एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ उलझे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो समझ में नहीं आ रहा, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले। So when they watch this show, when क्योंकि this is recorded, it will be there on YouTube and Facebook. So then more and more it reaches to people. So if you can say, pass on a message wherein they get that kind of motivation कि भाई हमसे हो सकता है, तो उस तरह का कुछ आप प्लीज शेयर विद अस। यस यस यस। सो इसमें मैं क्या बोलूँगा ना कि सब लोग, मतलब हर एक के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। सब लोग जो अपने अपने करियर में हैं, बहुत एफर्ट्स करके वहाँ पहुँचते हैं। यस। कोई इंजीनियर है, कोई लेबरर है, कोई कुक है, सब लोग, राइट। इतना सब करने के बाद जब आप किसी मुकाम पे पहुंच रहे हो, उसके बाद एक छोटी सी एक सिगरेट या एक छोटा सा तंबाकू का सैचेट लेने से अगर आप उस सारे चीज पे पानी डालना चाहते हो, तो आप गलत हो, है ना। लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं
अगर आपको Yes. उसकी आदत लग गई है तो आप उसके लिए हाथ आगे बढ़ाइए, लोग आपको हेल्प करेंगे और आपके जो फ्यूचर्स के गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। ये छोटी सी गलती सारे चीज को कट शॉर्ट कर देगी। आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आप प्रॉपर डॉक्टर्स को अप्रोच कीजिए, आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। मेरा मैसेज इतना ही रहेगा कि जो करना है कीजिए लाइफ में, पर इस एडिक्शन से दूर रहिए। Yes. कोई भी एडिक्शन आपको कुछ समय के लिए ही आनंद देता है, पर जब वो रेगुलर हो जाता है तो वो नुकसान ही करता है। और ये तंबाकू जो नुकसान कर सकता है, जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मुंह के कैंसर के पेशेंट को अच्छी मौत भी नसीब नहीं होती है, मैं ये कहूँगा। मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो कैंसर पेशेंट्स नहीं हैं, क्योंकि इतना तकलीफ होता है उस समय कि हम लोग नहीं देख पाते। जो फैमिली का सफरिंग से हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उस चीज को हम आपको दिखा नहीं सकते, बट हम चाहेंगे कि ये किसी को भी ना हो दुनिया में। और उसके लिए एक छोटी सी चीज करनी है, आपको बहुत कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये तंबाकू से दूर रहना है बस। इतना कर लेंगे तो ये किसी को नहीं होगा। एक सिंपल चीज कैंसर के लिए है, सिगरेट और तंबाकू से दूर रहिए और कुछ मत कीजिए, आपका लाइफ बहुत हेल्दी रहेगा। Okay. आपने बहुत सुंदर सा मैसेज दिया है कि इससे जितने लोग सुन रहे हैं इसको, जो बाद में सुनेंगे, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर मैसेज पहुंचा है कि इस टोबैको से दूर रहिए। तो थैंक यू फॉर दिस लवली इंसाइट डॉक्टर प्रीतम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग हियर। एंड या मैं ये मानती हूँ कि बहुत लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और बहुत लोग समझे इसको, और जो अभी एडिक्टेड है वो थोड़ा अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करें, बिकॉज उनको अपनी फैमिली के लिए जीना है। तो ना कि ये छोटे से, जो छोटी सी चीज खुशी दे रही है कुछ मिनटों के लिए, उसके लिए नहीं जीना है। सो थैंक यू डॉक्टर प्रीतम फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स अ लॉट। Thank you very much, and I am my best wishes with your best work that you are doing for the community. ये बहुत अच्छा काम है और हम लोग हमेशा आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।